Everyone, welcome back to my channel and thank you so much for clicking on the link to this video. So this time we are going to get down to the play of The Tempest by William Shakespeare. Now, The Tempest by William Shakespeare is again one of his very last plays. If we talk about the last plays by William Shakespeare, so he wrote particularly four last plays, which were The Pericles, Cymbeline, The Winter's Tale, and The Tempest. Now, The Tempest is not only his one of the last, but also the last complete solo play that Shakespeare had written. Now, Shakespeare had also published after this play, he was writing some of his works, but at the same time, he was not the solo author or the writer of that piece. He was collaborating with other authors and writers. So The Tempest was his last complete play, and some of the major themes of this play are again magic. इस play में supernatural elements हैं. We have two supernatural characters that are Ariel and Caliban. Then we have इसमें power politics का भी scenario है revolving around who becomes the duke. There is betrayal as well. कि we have one brother who is betraying the other brother in order to become the Duke of Milan. And then there's redemption also. अब हम जैसे देखते हैं कि शेक्सपियर के कैरेक्टर्स जैसे हम प्लेस में देखते हैं लाइक किंग लियर और हैमलेट there are certain characters who have a sense of pride, who have a sense of anger, एक sense of एक desire बहुत ज़्यादा है उन characters में. But at the same time जब शेक्सपियर अपने last phase of writing में आ जाते हैं जब when he comes to his last phase of writing at that time what he realizes is कि वो अपने कैरेक्टर्स को बहुत ज़्यादा काम बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड बना देते हैं उनके अंदर ये क्वालिटीज होती हैं ऑफ कामनेस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ एक काइंड ऑफ रिकॉन्सिलिएशन कि वो जो भी उनसे रॉन्ग्स हुए हैं उनको करेक्ट करना चाहते हैं तो इस टाइम पे शेक्सपियर बहुत ही डिफरेंट जोन में जाके कैरेक्टर्स को लिखना स्टार्ट कर देते हैं टुवर्ड्स दिस लास्ट प्लेस. Now we have the introduction to the play. It was written around the time of 1610 to 1611, and it was also published for the first time in 1623 in the last folio. तो लिखा ये 1611 1610 में था and then it was published around जब ये 1610 1611 में था तो it was published around the time of 1623 in the last folio. Again, it is considered as Shakespeare's last complete solo play. Combines the elements of magic, supernatural elements है, politics and also forgiveness. Forgiveness का जो element है, that is at the core of what this play is about. Then the play की जो setting है, वो है that it is set on a mysterious island. अब if we talk about the plot overview, so the play basically involves two shipwrecks. Play में two shipwrecks होते हैं एंड जो ये जो शिपरेक्स होते हैं इनमें क्या होता है कि एक शिपरेक थोड़े टाइम पहले होता है दूसरा इज कॉज्ड बाय द प्रोटैगनिस्ट प्रोस्पेरो जो कि थोड़े टाइम बाद होता है. तो जो फर्स्ट शिपरेक होता है दैट इज विद प्रोस्पेरो एंड मिरांडा. अब ये एक फादर और डॉटर हैं. प्रोस्पेरो इज द फादर एंड मिरांडा इज द डॉटर. तो जब ये होता है तो व्हेन what happens is कि Prospero was meant to be the rightful Duke of Milan, but जब वो नहीं बन पाता है the rightful Duke of Milan, that is when what happens is कि जो उसका brother होता है his brother is Antonio, and that is when his brother betrays him and he himself becomes the Duke of Milan, and Prospero is then left to go on an island with his daughter. अब इस टाइम पे क्या होता है कि सेबास्टियन एक और होता है उनमें. And Sebastian is the brother of Alonso. Alonso is the king of Naples जो एक कैरेक्टर बाद में आता है. बट सेबास्टियन क्या करता है इस टाइम पे प्रोस्पेरो की जो बोट होती है जिसमें वो उसको भेज देते हैं उस बोट में थोड़ी सी बुक्स डाल देता है जो कि प्रोस्पेरो की मैजिक बुक्स होती हैं. तो प्रोस्पेरो एंड मिरांडा दे बोथ गो फ्रॉम दैट प्लेस एंड देन व्हेन द शिपरेक हैपेंस तो वो एक आइलैंड में रह जाते हैं. दे आर स्टक ऑन एन आइलैंड. अब ये जो एलिमेंट है दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी सी कि जब ये प्ले अराउंड द टाइम जिस टाइम पे लिखा हुआ था इस टाइम पे बहुत ज्यादा कॉलोनाइजेशन हो रही थी. जो ब्रिटिशर्स थे दे वर गोइंग थ्रू डिफरेंट प्लेसेस एंड दे वर कॉलोनाइजिंग अ लॉट ऑफ नेशंस अ लॉट ऑफ आइलैंड्स. दे वर कॉलोनाइजिंग अ लॉट ऑफ पीपल. तो जब ये हो रहा था तो मिरांडा और प्रोस्पेरो का जो जाने का एक्शन है कि हाउ दे आर लीविंग देयर होमलैंड एंड गोइंग समवेयर एल्स इसको भी एक काइंड ऑफ एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉलोनाइजेशन देखा गया था बाय लॉट ऑफ क्रिटिक्स अ लॉट ऑफ रीडर्स ऑफ द प्ले.
अब ऐसा क्यों पर्टिकुलरली वो कॉलोनाइजेशन से लिंक करते हैं? बिकॉज वेन देर इज अ कॉलोनाइजर देर इज ऑल्सो समबडी हु इज कॉलोनाइज्ड। अब प्रोस्पेरो एंड मिरांडा जब वो अपना प्लेस छोड़ के, अपना होमलैंड छोड़ के जब वो दूसरा आइलैंड में जाते हैं, व्हेन दैट हैपेंस, तो फिर वहां पे उनको एरियल और कैलिबान के दो कैरेक्टर्स होते हैं, उनको प्रोस्पेरो अपना स्लेव बना लेता है। ठीक है, नाउ दिस अगेन इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉलोनाइजेशन, कि कैसे ना ही आप दूसरे आइलैंड में जाके रह रहे हो जो कि आपका नहीं है, बट एट द सेम टाइम यू आर ऑल्सो ट्रीटिंग द अदर पीपल जो कि उस आइलैंड के इनहेबिटेंट्स एंड नेटिव हैं, उनको अपने से लोअर लेवल पे यू आर ट्रीटिंग देम। सो दिस अगेन इज अ सिंबल ऑफ कॉलोनाइजेशन। अब ये तो एक तरह से एक शिपरेक हो गया है। दूसरी तरफ एक और शिपरेक होता है जो कि कुछ सालों बाद होता है, जो कि प्रोस्पेरो खुद कॉज करता है। अब प्रोस्पेरो एक बोट जा रही होती है, लाइक आ रही होती है इनफैक्ट, जिसमें होता है किंग अलोंसो हु इज द किंग ऑफ नेपल्स, देन वी हैव एंटोनियो हु इज प्रोस्पेरो's ब्रदर, and then we have Sebastian who is Alonso's brother, and then we also have three characters, Stefano and Trincolo and Ferdinand who is Alonso's son। तब ये लोग सारे शिप से वापस आ रहे होते हैं। एक किंग अलोंसो की जो बेटी है उसकी एक प्रिंस से एक शादी हो रही होती है। तो जब वो लोग उस शादी को अटेंड करके वापस आ रहे होते हैं, एकदम से एक शिपरेक हो जाता है जो कि प्रोस्पेरो ने अपने मैजिक से कॉज किया होता है। प्रोस्पेरो एंड मिरांडा जो कि अभी आइलैंड में स्टक है, तो वो ये एक मैजिक करते हैं जिससे ये लोग जो जा रहे होते हैं इतने सालों बाद, मतलब आ रहे होते हैं एक शिपरेक से, वो लोग एक आइलैंड में स्टक हो जाते हैं एंड फर्दिनांद उनसे अलग हो जाता है। फर्दिनांद हु इज द सन ऑफ किंग अलोंसो। अब जब वो अलग हो जाता है तो उसकी एक अलग टेल स्टार्ट हो जाती है जहाँ पे वो मिरांडा से मिलता है। जब मिरांडा उसको देखती है तो शी इज वेरी ऑस्ट्रक, बिकॉज उसने आज तक सिर्फ प्रोस्पेरो को देखा था, एरियल और कालिबान को देखा था जो कि उसके फादर से इंस्लेव्ड थे। तो जब वो फर्दिनांद को देखती है तो शी इज वेरी शॉक टू सी अनदर मैन, एंड वो उससे बहुत ज्यादा इंट्रीग्ड होती है उसको जानने के लिए। एंड स्लोली दे बोथ फॉल इन लव विद ईच अदर। बट प्रोस्पेरो उनके लव को टेस्ट करता है एंड धीरे धीरे, इवन दो फर्दिनांद को प्रॉब्लम्स होती हैं उस अपने लव को एक्सप्रेस करने में, दे बोथ गेट यूनाइटेड एंड दे बोथ ऑल्सो गेट मैरिड। अब ये जो एक और सब प्लॉट साथ साथ चल रहा है, नॉट आई विल नॉट से सब प्लॉट बट अ काइंड ऑफ पैरेलल जो चल रहा होता है, जो बाकी मेंबर्स जिनके साथ शिपरेक हुआ होता है, जिसमें किंग होता है, एंटोनियो होता है, सेबास्टियन होता है, अब ये लोग भी स्टक हैं। तो वहां पे किंग ये सोचता है कि काश ये शादी ही ना हो रही होती तो मेरा बेटा मुझसे अलग नहीं होता, फर्दिनांड वुड नॉट हैव बीन सेपरेटेड फ्रॉम मी। तो ही इज रिग्रेटिंग दिस वाइल देन वी हैव कि जब रात का टाइम हो जाता है तो एंटोनियो सेबास्टियन को बोलता है कि व्हाई डोंट यू किल योर ब्रदर किंग अलोंसो ताकि तू किंग बन जाए। एंड सेबास्टियन वो पहले तो कंफ्यूज होता है बट उसको भी आइडिया अच्छा लगता है। तो जैसे ही वो किंग अलोंसो को मारने वाला होता है उसी टाइम पे एरियल आके ही इमीडिएटली वेक्स किंग अलोंसो अप एंड उनका वो एक्शन कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो ऐसे ही वी ऑल्सो हैव अनदर सीन गोइंग ऑन जहाँ पे कालिबान स्टेफानो और ट्रिंकोलू से मिलता है। तीनों ड्रंक हो जाते हैं। अब कालिबान बहुत ज्यादा अपसेट होता है बिकॉज ही इज द वन हु इज इंस्लेव्ड बाय प्रोस्पेरो। तो जब वो स्टेफानो और ट्रिंकुलो को मिलता है तो वो स्टेफानो को ये बोलता है कि तुम बन जाओ, तुम प्रोस्पेरो की पोजीशन ले लो, तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो। बट देन अगेन उनका प्लान भी फेल हो जाता है। तो ये सब सारी चीजें जब चल रही होती हैं इस प्लॉट में, what happens is कि साथ ही साथ as I mentioned Miranda and Ferdinand are also getting married. Now when they are getting married, what happens is that in particular we have Prospero who is telling Ariel कि तुम एक performance करो। Now that is considered as a mask performance. This is very important to note कि जो Ariel performance करता है that is considered as a mask performance, जो कि उनकी शादी के टाइम पे हो रहा होता है। अब देर व्हेन देयर इज अ मास्क परफॉर्मेंस इन शेक्सपियर्स प्ले देयर इज आल्सो एन एंटी मास्क परफॉर्मेंस, जो कि इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट कि अब एक मास्क तो हो रहा है बट देयर इज एंटी मास्क दैट इज कम्प्लीटली ऑपोजिट ऑफ इट। ठीक है, देयर इज अ मास्क परफॉर्मेंस जहाँ पे ये लोग डांस कर रहे हैं, दीज आर द स्पिरिट्स दैट आर इन्वॉल्वड, बट एट द सेम टाइम देयर इज आल्सो एन एंटी मास्क दैट इज कम्प्लीटली ऑपोजिट, और इस प्ले में वो एंटी मास्क इज द शिपरेक दैट हैज हैपेंड। तो ये सब हो रहा होता है। जब मिरांडा एंड फर्डिनांड की वेडिंग होती है तो प्रोस्पेरो उन बाकी कैरेक्टर्स को भी बुला लेते हैं इंक्लूडिंग हिज वेरी ओन ब्रदर हु हैड बिट्रेड हिम।
तो जब वो लोग आते हैं तो वो उनको रिवील करता है दैट दे बोथ हैव गॉटन मैरिड, दे लव ईच अदर, एंड उसी टाइम पे ही ऑल्सो reconciles with his brother. He says that whatever has happened, and there is redemption for both of them. There's forgiveness for each other. एंड इवन टुवर्ड्स द एंड वो एरियल को भी फ्री कर देता है. एरियल जो कैरेक्टर है इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो एक सुपर नेचुरल कैरेक्टर है प्ले में, जो कि प्रोस्पेरो से जब वो मिला था तो प्रोस्पेरो ने उसको बोला था दैट आई एम गोइंग टू फ्री यू. क्योंकि वाई हाउ मतलब बेसिकली किस चीज से फ्री करने के लिए, बिकॉज एरियल वॉज इम्प्रिजन्ड टू अ ट्री बाय अ विच नेम साइकोरैक्स. तो प्रोस्पेरो ने उसको बोला था दैट आई हैव मैजिक एंड आई विल फ्री यू फ्रॉम दिस इफ यू बिकम माई स्लेव. तो जैसे ही ये सारे इवेंट्स हो जाते हैं एंड प्रोस्पेरो हैज गॉटन हिज डॉटर मैरिड, वो अपनी भाई के साथ भी एक सेंस ऑफ रिकॉन्सिलिएशन में आ चुका है, तो उस टाइम पे वो एरियल को भी फ्री कर देता है. एंड व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द प्ले इज when Prospero comes on stage, and that is when he says that now I'm resigning, I'm leaving this world of magic. अब इसको particularly a lot of readers claim कि एक काइंड ऑफ शेक्सपियर ही ऑडियंस और रीडर्स को बता रहा है कि नाउ ही हैज रिटन प्लेस एंड नाउ ही इज नॉट गोइंग टू राइट एनी मोर प्लेस एंड ही इज ऑल्सो रिजाइनिंग ऑफ, ही इज लीविंग द स्टेज. तो दिस एपिलॉग इज ऑल्सो पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे प्रॉस्पेरो बोलता है दैट ही इज लिविंग द वर्ल्ड ऑफ मैजिक, इट इज ऑलमोस्ट बिलीव दैट हाउ शेक्सपियर इज सेइंग दैट ही इज नॉट गोइंग टू राइट एनी मोर, इवन तो वो आगे जाके लिखते हैं बट दे आर नॉट his solo works, but he says कि now he is also in a way resigning off from the world of theater. So this was the major plot overview for the play. We have the main characters, Prospero, who is the magician protagonist. We have Miranda, whose daughter, Ariel, जो कि वो spirit है. Then we have Caliban, again very important कि जो हमने colonization का point किया था. Ariel and Caliban were the colonized people, जिसको Prospero, he was the one, he said कि तुम मेरे slaves बन जाओ and I will free you. Then we have Antonio. Antonio is Prospero's brother, जिसको Prospero ने actually Antonio was the one to betray Prospero. And then we have Ferdinand. Ferdinand is Miranda's love interest. ये major themes हैं, power and control. We see that how Prospero कैसे, even though एक power से वो निकल चुका था जब उसके brother ने उसको betray किया था to become the king, but still he continued to rule over the island, over the inhabitants. Then हम देखते हैं कि कैसे Caliban and Ariel का treatment is representation of colonization. Towards the end जब Prospero अपने भाइयों से he reunites with them, he reunites with the characters, he says that it is better that we move on, there's a sense of forgiveness, redemption. And then we have magic and illusion. कैसे इसमें we have the main character Prospero, who is into his magic books, who is performing magic tricks. And then we also have the other characters like the supernatural elements जो illustrate करते हैं. Ariel, जो कि मिरांडा और फर्दिनांद की डांस परफॉर्मेंस एक मास परफॉर्मेंस करता है. अगेन इट इज अ सुपरनैचुरल परफॉर्मेंस. एंड कालीवान is also like a monstrous figure that is also supernatural. Then there are these key quotes that are important, which is we are such stuff as dreams are made on, said by Prospero. It is a very, very famous quote. Please do look upon this. And then there is this thing of darkness, I acknowledged mine, said by Prospero. And oh, brave new world that has such people in it. It is a very, very important quote by Miranda. Miranda ये particularly तब बोलती है because उसकी world had always been limited. When I said कि जब ये लोग एक island में stranded थे, तो मिरांडा had always seen just her father and the two slaves, Ariel and Caliban. उससे ज़्यादा exposure उसको मिला ही नहीं था about the other individuals living around her. तो दैट इज व्हेन शी मीट्स ऑल दीज पीपल. जब वो अलोंसो को देखती है, जब वो एंटोनियो को देखती है, दैट इज व्हेन शी रियलाइजेस कि इतने सारे लोग आर देयर, एंड दैट इज व्हेन शी मेक्स दिस कोट, ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड दैट हैज सच पीपल इन इट. Then again, the